everyone. Welcome once again in today's class of environment. Open your textbook and open page number 87. Given below are some daily activities. Show on the face of the clocks at what time of the day you do them. Here in this box, some daily activities are given and we have to write the timing of those given activities. यहाँ पर इस बॉक्स में कुछ डेली एक्टिविटीज़ दी गई है. वो एक्टिविटीज़ आप कौन से वक्त पर करते हो वो वक्त आपको इस क्लॉक के अंदर ड्रॉ करना है. सो वेक अप इन द मॉर्निंग. सो 6 o'clock. Draw here 6 o'clock. Small hand on 6 and big hand on 12. Then go to school at 7 o'clock. Return from school at 1 o'clock. Sit down to study at home at 4 o'clock. Go to play at 6 o'clock in the evening. Sleep at night at 10 o'clock. So, draw all these timings in your textbook. If your timings are different from this, so you can draw your timings in your textbook. Which of your family members do household work? What work do they do? आपके फैमिली मेंबर्स में से कौन घर का काम करता है और कौन से प्रकार का काम वो करता है ये आपको यहाँ पर लिखना है. सो राइट हियर द फैमिली मेंबर्स नेम्स एंड द वर्क दे डू. Mother, all types of household work. Sister, helps mother. Grandfather, goes to pay the bills. Grandmother, helps mother in cooking food. And father, takes care of the financial work of the house. So write this in your textbook. Now turn the page and see on page number 88. Which of your family members work to earn money? आपके फैमिली मेंबर्स में से कौन पैसे कमाने के लिए वर्क करता है? So you have to write here family members and work they do. For example, father. So, maybe he is a professor, he is a lawyer, he is a teacher, he is an engineer. Whatever he is that you have to write here. And father, he is a teacher. He teaches to the students. Like that you write. Then mother also you can write if your mother is doing some work. So, write this by yourself. Which of your family members do work but do not get money for it? आपके घर का कौन सा मेंबर ऐसा है कि जो वर्क करता है लेकिन उसे उसके लिए पैसे नहीं मिलते? So, you can write it there. For example, if your mother does all the household work but she doesn't get any money for it. वो जो काम करती है घर पे, खाना बनाती है, कपड़े धोती है या कुछ भी, तो वो काम तो है ही लेकिन उसे उसके लिए पैसे नहीं मिलते. Then find out from your grandparents what work they did when they were children. आपको आपके ग्रैंड पेरेंट्स को पूछना है और उनसे ये पता करना है कि जब वो छोटे बच्चे थे तब वो कौन सा काम करते थे. ये आपको यहाँ पर लिखना है. So maybe they went to the fields, helped their parents, any type of domestic work. So you have to write it here by yourself. Ask your grandparents and write it here. Now
Sarla asked her grandmother Nani the same question. Nani replied, when I was a child, I would help my elders to collect firewood, make cow dung cakes and plaster walls with cow dung. सरला ने ये सेम क्वेश्चन अपनी नानी से पूछा कि जब आप छोटे थे तब आप क्या काम करते थे। तो उसकी नानी ने जवाब दिया कि जब मैं छोटी थी तो मैं अपने बड़ों को लकड़ियाँ इकट्ठे करने में और जो काउ डंग केक्स होती है उसे कलेक्ट करके उसमें से वॉल्स को प्लास्टर करने में उनकी हेल्प करती थी। बट नाउ वी हैव अ स्टव दैट वर्क्स ऑन गोबर गैस। लेकिन अब हमारे पास एक स्टव है जो गोबर गैस से वर्क करता है। द फ्लोर एंड द वॉल्स ऑफ आवर हाउस आर सीमेंटेड। हमारे घर की फ्लोर और वॉल्स अब सीमेंट से बनी हुई है। देयर इज नो नीड फॉर सरला टू डू सम ऑफ द जॉब्स दैट हर ग्रैंड मदर डिड इन हर चाइल्डहुड। तो अब सरला की नानी जो उनके बचपन में काम करती थी वो सारे काम सरला को करने की कोई ज़रूरत नहीं है। Let's move to the next page. See on page number 89. You had written about the work you do and the work done by your elders in their childhood. Is there a change? अगर आपने ये लिखा या फिर ये जाना कि जो काम आप करते हो और जो काम आपके बड़े उनके बचपन में करते थे उन दोनों वर्क में क्या डिफरेंस है, कोई चेंज है या नहीं, ये आपको जानना है। दीपाली हैड टू लीव स्कूल टू डू हाउस होल्ड वर्क। फाइंड आउट इफ देर आर एनी चिल्ड्रन इन योर नेबरहुड हु आर ओवर 5 years एंड डू नॉट गो टू स्कूल। जैसे कि दीपाली को अपने घर का काम करने के लिए अपनी स्कूल छोड़नी पड़ी, वैसे ही आपके घर के आसपास आपके नेबरहुड में कोई ऐसा बच्चा है कि जिसके 5 years हो चुके हैं और अभी तक वो स्कूल में नहीं जा रहा है, ये आपको फाइंड आउट करना है। टॉक टू एनी 2 children एंड फाइंड आउट वाई दे डू नॉट गो टू स्कूल। और ऐसे बच्चों में से आपको किसी भी 2 बच्चों से बात करनी है, उनसे पूछना है कि वो क्यों स्कूल नहीं जा रहे हैं। जैसे कि अगर आपके घर में कोई मेड आती है काम करने के लिए और उनके बच्चे स्कूल में नहीं जा रहे हैं तो उन बच्चों से पूछना है कि आप स्कूल में क्यों नहीं जा रहे हैं। ओके, दिस चाइल्ड लाइक विच काइंड ऑफ स्कूल, राइट अबाउट इट। और ऐसे बच्चे को कैसे प्रकार की स्कूल पसंद है उसके बारे में आपको लिखना है। सो हियर सम कॉलम्स आर गिवन टू राइट। नेम ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड। आप किसी 2 बच्चे से मिलो तो उसमें से जो पहला बच्चा है उसका नाम क्या है, उसका नेम लिखना है। रीज़न फॉर नॉट गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल क्यों नहीं जा रहा है उसका रीज़न आपको यहाँ पर लिखना है। व्हाट यू लाइक द मोस्ट इन द स्कूल। और उस बच्चे को अगर स्कूल में जाना मिले तो उसे स्कूल में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है वो भी यहाँ पर लिखना है। देन नेम ऑफ द सेकंड चाइल्ड, वो जो दूसरा बच्चा है जो स्कूल नहीं जा रहा उसका नेम लिखना है। देन रीज़न फॉर नॉट गोइंग टू स्कूल, सेम उसे भी क्या रीज़न वो देगा वो रीज़न लिखना है। और व्हाट यू लाइक द मोस्ट इन द स्कूल दैट यू राइट हियर। सो यू हैव टू कंप्लीट दिस। राइट what will you do for these children so that they come to school। और ऐसे बच्चे की जो स्कूल में नहीं जा रहे हैं, ऐसा कोई बच्चा आपको मिले तो आप उसके लिए क्या करोगे, ये आपको यहाँ पर लिखना है। सो यू कैन राइट मीट देयर पेरेंट्स एंड अर्ज देम टू सेंड द चाइल्ड टू स्कूल। आप क्या कर सकते हो, तो उनके पेरेंट्स से मिल सकते हो और उन्हें कह सकते हो कि आप अपने बच्चे को स्कूल क्यों नहीं भेज रहे हो। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उनको स्कूल भेजें और आगे पढ़ाए।
So this you can do for them, and you have to write this in your textbook. Okay children, here I complete our today's session. Have a nice day. Goodbye.